Assalamu alaikum. It's my channel Smart Medical Study. My name is Arish Vatpa, and in this lecture we will discuss the glenohumeral joint surgery and post-operative management. फर्स्ट हम देखेंगे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट सर्जरी, जीएच जॉइंट जिसको हम शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं. Severe deterioration of GH joint or acute or non-union fracture of proximal humerus often managed with सर्जिकल इंटरवेंशंस. अगर जीएच जॉइंट की डिटेरियोरेशन हो गई है, एक्यूट या फिर नॉन यूनियन फ्रैक्चर है प्रॉक्सिमल ह्यूमरस का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सर्जिकल इंटरवेंशंस. पैथोलॉजीज दैट कॉज एडवांस जॉइंट डिस्ट्रक्शन इंक्लूड लेट स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस और एनी काइंड ऑफ ट्रोमेटिक आर्थराइटिस, कफ टेयर, आर्थोप्लास्टी एंड एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द ह्यूमरल हेड. उसके लिए हम क्या करेंगे? These are the advanced joint destructions. Most common surgical procedure for shoulder joint pathology is GH joint arthroplasty, जिसको हम commonly क्या कहते हैं? Shoulder arthroplasty. In rare situation, arthrodesis, fusion of the joint, its mean arthrodesis of GH joint may be necessary as an alternative to arthroplasty. उसके अल्टरनेटिव के तौर पे हम आर्थ्रोडेसिस भी कर सकते हैं. गोल्स ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर एंड पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन आर. गोल्स क्या होंगे? रिलीफ पेन, इम्प्रूव शोल्डर मोबिलिटी और स्टेबिलिटी, रिस्टोर स्ट्रेंथ एंड फंक्शनल यूज ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी. अचीवमेंट ऑफ गोल्स इज प्रिडिक्टेड on patient participation, depend on the patient participation obviously, and severity of the pathology, prosthetic design and surgical techniques के हमने कौन सी टेक्निक्स यूज़ की हैं, also depend upon integrity of rotator cuff mechanism and soft tissues, age of a person and his overall health. ये सब चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं. अचीवमेंट ऑफ द गोल्स में इन सब का रोल होता है. ग्लिनोह्यूमरल आर्थ्रोप्लास्टी. It has severe categories, most common of which are total shoulder arthroplasty, जिसको हम TSA भी कहते हैं. In this arthroplasty, both the glenoid and humeral surface are replaced, और उसको हम क्या कहेंगे? इस आर्थोप्लास्टी में जीएच जॉइंट की, इसके अंदर ग्लिनोह्यूमरल सरफेस आर रिप्लेस्ड. दोनों ग्लिनॉइड फोसा एंड ह्यूमरल सरफेस बहुत ही रिप्लेस हो रही हैं. एंड हेमी रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टी वो क्या होती है? इन विच ह्यूमरल हेड इज रिप्लेस्ड, ह्यूमरस का हेड रिप्लेस होगा. रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी इज अनदर टाइप ऑफ आर्थोप्लास्टी यूज्ड व्हेन रोटेटर कफ इंटेग्रिटी इज कंप्रोमाइज्ड. रिवर्स टोटल आर्थोप्लास्टी जब हम कब यूज़ करेंगे? जब रोटेटर कफ इंटेग्रिटी क्या होगी? कंप्रोमाइज्ड होगी. व्हेन अदर कैटेगरीज ऑफ शोल्डर आर्थोप्लास्टी आर इंटरपोजिशनल आर्थोप्लास्टी एंड resurfacing arthroplasty, in which less extensive removal of bone का रिमूवल क्या होगा? कम होगा. resurfacing है. indications for surgery. किन किन conditions में हम इसको प्रेफर करेंगे कि सर्जरी हो? following structural and functional impairment associated with these pathologies are widely accepted indications for GH joint arthroplasty. If any kind of sustained pain secondary to GH joint destruction is primary indication for GH joint arthroplasty. Secondary indications क्या हैं? और loss of shoulder mobility or strength and inability to perform functional activities. Procedure क्या होगा? Implant design हम देखेंगे. Materials and fixators कौन कौन से यूज़ करने हैं. Design of contemporary THA. THA mean total shoulder arthroplasty. Hardware composed of high density polyethylene glenoid component and modular insert metal humeral component closely approximate biomechanical characteristics of humeral shoulder. Exception of this is the reverse total shoulder arthroplasty, in which reverses the native shoulder ball and socket relationship. वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. Glenoid fossa is replaced with convex
Glenocephalical component attached to glenoid base and humeral head replaced with the stemmed concave cup. Fixation of prosthetic component with cement or bio ingrowth. Types of fixation कौन कौन से होंगे? Selected by the surgeons, depend upon component pathology and the quality of the bone stock. Types of fixation जो है वो depend करती हैं. In osteoporosis, cement fixation is most often necessary. Osteoporosis में हम क्या यूज करेंगे? Cement fixation. Design of total shoulder replacement ranges from unstrained to semi-strained to constrained, provide varying amount of stability and mobility to the. इन सब की जो है वो stability और mobility क्या है? vary करती है. Selection of procedure for selection of TSA or reverse total shoulder arthroplasty or hemiarthroplasty, it depends upon etiology, depend upon the cause, severity of the joint destruction and periarticular soft tissue condition, particularly the rotator cuff mechanism. There is complexity involved in the choice of operative procedure and prosthetic design. Patient with late stage osteoarthritis GA joint exhibit loss of articular cartilage of head of humerus. ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है तो उसमें क्या होगा? आर्थराइटिस क्या होगा? कार्टिलेज लॉस होगा उसमें, उस आर्थराइटिस में, एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ ग्लीनॉइड फोसा भी. रोटेटर कफ इज इंटैक्ट इन ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ दीज पेशेंट्स, मेकिंग देम गुड कैंडिडेट फॉर TSA और हेमी आर्थोप्लास्टी. इन सब के लिए ये पेशेंट जो है वो गुड कैंडिडेट है. हेमी आर्थोप्लास्टी इनमें की जा सकती है और TSA. Recent meta-analysis found better functional outcome in those receiving TSA. जो TSA रिसीव करते हैं उनके अंदर ज़्यादा अच्छा आउटकम है, फंक्शनल आउटकम है. बट नो डिफरेंस इन इंस्टेबिलिटी रेट बिटवीन TSA एंड हेमी आर्थोप्लास्टी. इंस्टेबिलिटी दोनों में ही कॉमन है. Chronic synovitis associated with rheumatoid arthritis or other type of synovium-based arthritis tend to erode periarticular soft tissue in addition to the joint articular surfaces. Synovitis के अंदर जिसमें inflammation हो होती है associated with the rheumatoid arthritis. Full thickness rotator cuff tear, tendon tear develop in 25 to 40% of these patients, and bicep tendon rupture is in even greater percentage. bicep tendon का rupture जो है वो इससे भी ज़्यादा percentage में है. If a soft tissue can be repaired, soft tissue की repairment हो गई है and their function improve, semi constrained TSA may be indicated. तो इसमें हम क्या करेंगे? semi constrained TSA यूज़ करेंगे. If an effective repair cannot be received, then the reverse TSA usually indicated. When insufficient bone stock for fixation of glenoid implant, hemiarthroplasty is the best. तो सबका बता रहे हैं indications के कौन सा किस condition के लिए बेस्ट है. Hemiarthroplasty is used when articular surface and underlying bone of humeral head have deteriorated, but glenoid fossa is intact as seen with osteonecrosis. मगर उसमें क्या होगा? glenoid fossa क्या हो? intact हो. Patient with chronic pain and loss of function as a result of massive irreparable cuff tear and subsequent cuff tear arthroplasty, reverse TSA is usually indicated. Chronic deficiency of rotator cuff mechanism, अगर deficiency हो गई rotator cuff mechanism की, often lead to superior migration of humeral head on the glenoid fossa. If glenoid TSA component is insulted, under this condition superior migration create an incongruence articulation that can increase the risk of component loosening. उससे क्या होगी? अगर इनकॉन्ग्रुएंस है उस सरफेस में तो क्या होगा? लूजनिंग होगी एंड प्रीमेच्योर वेयर ऑफ ग्लिनॉइड इम्प्लांट. रिवर्स TSA डेवलप टू ओवरकम द कॉम्प्लिकेशन. इस कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? रिवर्स TSA बाय मिनिमाइजिंग ट्रांसलेशन बिटवीन ग्लिनोस्फेयर एंड ह्यूमरल आर्टिकुलर सरफेसेस.
अदर फीचर्स ऑफ रिवर्स TSA, रिड्यूस फोर्स ऑन ग्लिनॉइड कंपोनेंट, ग्लिनॉइड कंपोनेंट पे क्या करता है, फोर्स को रिड्यूस करता है, इनहेरिट स्टेबिलिटी ओइंग टू कन्ग्रुएंसी ऑफ द कंपोनेंट, एंड इंक्रीज डेल्टॉइड मोमेंट आर्म, डेल्टॉइड मोमेंट आर्म को भी इंक्रीज करता है। वन लिमिटेशन ऑफ रिवर्स TSA डिज़ाइन इज डिक्रीजिंग GH जॉइंट, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। इसका वन लिमिटेशन क्या है, इसका वन डिसएडवांटेजेस क्या है, डिक्रीज करता है रेंज ऑफ मोशन को GH जॉइंट पर। ऑपरेटिव प्रोसीजर्स TSA, रिवर्स TSA एंड हेमी आर्थोप्लास्टी आर ओपन सर्जिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म विद द पेशेंट इन सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन, इस पोजीशन में परफॉर्म होंगे। दीज ऑपरेटिव प्रोसीजर इन्वॉल्व द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज एंटीरियर अप्रोच यूजिंग ए डेल्टो पेक्टोरल इंसिजन, हम वहाँ पे कट लगाएंगे डेल्टो पेक्टोरल रीजन पर, दैट एक्सटेंड फ्रॉम AC जॉइंट टू डेल्टॉइड इंसर्शन फॉर एडिक्वेट सर्जिकल एक्सपोजर। सेकेंड इज रिलीज ऑफ सबस्कैपुलरिस टेंडन, उसको हम रिलीज करेंगे फ्रॉम इट्स प्रॉक्सिमल अटैचमेंट ऑन लेसर ट्यूबरोसिटी, एंड एंटीरियर कैप्सुलोटोमी, एक्सपोजर ऑफ ह्यूमरल हेड फॉर ह्यूमरल ऑस्टियोटोमी, प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमरल कैनाल फॉर इंसर्शन ऑफ, फिर वहाँ हम क्या लगाएंगे, प्रोस्थेटिक इम्प्लांट। आफ्टर कंपोनेंट प्लेसमेंट के बाद सबस्कैपुलरिस इज देन रीअटैच, हम उसके टेंडन के रीअटैच करेंगे, एंड मे बी लेंथन, थोड़ा सा लेंथन भी करेंगे इफ़ एक्सटर्नल रोटेशन रेंज ऑफ मोशन इज़ लिमिटेड, कि वो शॉर्ट ना हो जाए वहाँ पे, वरना वहाँ पे क्या हो जाएगी, शॉर्टनेस हो जाएगी, तो फिर उस एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो लिमिटेड होगी। ग्लिनॉइड फोसा इज कंट्रोल टू एक्सेप्ट द इम्प्लांट फॉर TSA। रिकंस्ट्रक्शन एंड बैलेंसिंग करेंगे सॉफ्ट टिश्यूज की इज क्रिटिकल फॉर प्रॉपर फंक्शन आफ्टर TSA एंड हेमी आर्थोप्लास्टी। Balancing refer to the intraoperative lengthening or tightening of soft tissue to restore near normal resting tension in tissues, ताकि जो है वो टिश्यूज़ में टेंशन नॉर्मल रहे as possible, particularly in the biceps, rotator cuff, deltoid muscle tendons units. Concurrent procedure necessary during shoulder arthroplasty include, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, repair of deficient rotator cuff if quality of rotator cuff is sufficient, capsular tightening, कैप्सूल कब टाइट होगा, for the chronic GH joint subluxation or dislocation, वहाँ पे कैप्सूलर पैटर्न होगा, anterior acromioplasty for history of impingement syndrome, bone graft of glenoid if bone stock is insufficient फॉर फिक्सेशन ऑफ ग्लिनॉइड इम्प्लांट, अगर वो सरफेस जो है वो इंसुफिशेंट है तो हम वहाँ क्या करेंगे, बोन ग्राफ्ट करेंगे। आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ प्रोस्थेटिक कंपोनेंट एंड सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर बिफोर क्लोजर ऑफ स्किन इंसिजन, शोल्डर इज पैसिवली मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, हम इंसिजन को क्लोज करने से पहले शोल्डर को पैसिवली मूव करेंगे ऑल प्लेन्स ऑफ द मोशन टू विजुअली इवेलुएट द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोस्थेटिक इम्प्लांट, प्रोस्थेटिक जॉइंट, ताकि स्टेबिलिटी को देखा जा सके, एंड इंटेग्रिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इट डिटरमाइंस द एनाटोमिकल रेंज ऑफ मोशन, के रेंज ऑफ मोशन शोल्डर की कंप्लीट है कि नहीं है पॉसिबल आफ्टर सर्जरी, एंड एग्रेसिवनेस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव प्रोग्राम। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं इसके अंदर, ऑल दो द इंसिडेंस ऑफ इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आफ्टर करंट डे आर्थोप्लास्टी इज लो, इवन ए सिंगल कॉम्प्लिकेशन कैन एडवर्सली इफेक्ट फंक्शनल आउटकम, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो फंक्शनल आउटकम उससे क्या होगा, इफेक्ट होगा। कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर TSA टेंड टू बी हायर इन पेशेंट विद डेफिशिएंट रोटेटर कफ मैकेनिज्म, ऑस्टियोपोरोसिस और हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक GH जॉइंट इंस्टेबिलिटी, इन पेशेंट्स के अंदर TSA की कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी आफ्टर दी सर्जरी। असाइड फ्रॉम मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के अलावा क्या हो सकती है, इन्फेक्शन या DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या होगी इसके अंदर,
पेशेंट को हमने एजुकेट करना है एंड क्लोज कम्युनिकेशन होनी चाहिए अमंग द थेरापिस्ट, सर्जन एंड द पेशेंट आर द बेसिक ऑफ एन इफेक्टिव एंड सेफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। पेशेंट को एजुकेट करना, उसको कम्युनिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। इंटेग्रिटी ऑफ रोटेटर कफ, द गोल्स कंपोनेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम आफ्टर TSA hemiarthroplasty आर influenced by pre-operative and post-operative integrity of rotator cuff mechanism। पहले भी उन्होंने ये बात बताई और वो फिर बता रहे हैं कि इंटेग्रिटी ऑफ रोटेटर कफ मैकेनिज्म के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है आफ्टर TSA एंड हेमिआर्थोप्लास्टी। Rehabilitation for intact rotator cuff to shoulder arthroplasty can be progressed rapidly that the patient with rotator cuff deficiency। When rotator cuff is intact, अगर rotator cuff जो हमारे मसल्स हैं वो intact हैं, prior to the surgery, emphasis of post operative management is to restore shoulder mobility। तो हम पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में शोल्डर की मोबिलिटी पर फोकस करेंगे अगर रोटेटर कफ इंटैक्ट है एज सुन एज पॉसिबल वाइल सपोर्टिंग दी सॉफ्ट टिश्यूज एज दे हील। इन कंट्रास्ट, अगर इफ़ प्री ऑपरेटिव हिस्ट्री ऑफ GI जॉइंट डिसलोकेशन देन इन रिहेबिलिटेशन, अगर कोई डिसलोकेशन है GI जॉइंट में तो रिहेबिलिटेशन में हम शोल्डर की स्टेबिलिटी पर काम करेंगे रैदर देन दी मोबिलिटी। इंट्रा ऑपरेटिव रेंज ऑफ मोशन, goals for safe stable post operative range of motion are based on intraoperative range of motion। range of motion उस टाइम नॉर्मल थी कि नहीं। measurements taken before closing the surgical incision, आपने जो है पैसिवली आपने मूव करवा के हर जॉइंट को एनाटोमिकल रेंज ऑफ मोशन अचीव करनी है। इन केस ऑफ अनकंस्ट्रेन्ड TSA and sufficient shoulder stability, goals at end of rehabilitation is to gain, ज़ाहिर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन गेन करना ही गोल होता है हमारा। इक्वल टू द इंट्रा ऑपरेटिव रेंज ऑफ मोशन आइडियली 140 to 150 डिग्री ऑफ शोल्डर एलिवेशन एंड 40 to 45 डिग्री ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन। इफ पेशेंट हैव मोर कंस्ट्रेन्ड TSA, डेफिशिएंट रोटेटर कफ मैकेनिज्म और GI जॉइंट लैक्सिटी, इंट्रा ऑपरेटिव रेंज ऑफ मोशन इज टिपिकली लेस। इसमें क्या होगी, लेस होगी। एंड पोस्ट ऑपरेटिव गोल फोकस ऑन दी स्टेबिलिटी एंड लेस ऑन मोबिलिटी, मोबिलिटी पे कम फोकस होगा हमारा, स्टेबिलिटी पर फोकस होगा। फॉलोइंग TSA रेंज ऑफ मोशन इज लिमिटेड टू 0 to 20 डिग्री एक्सटर्नल रोटेशन एंड 90 to 120 डिग्री एलिवेशन फॉर 3 months। 3 months के लिए किसके अंदर, रिवर्स TSA में। पोस्चर की बात की जाए, व्हेन इंक्रीज थोरेसिक काइफोसिस एंड स्कैपुलर प्रोट्रैक्शन आर प्रेजेंट, इट्स इंपॉर्टेंट टू एम्फेसाइज करेक्ट सिटिंग और स्टैंडिंग पोस्चर। पोस्चर मेंटेन रखना पेशेंट का, अगर उसके अंदर काइफोसिस है, प्रोट्रैक्शन है, पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने ठीक उसको रखा हुआ है। ड्यूरिंग एलिवेशन ऑफ आर्म एंड इनकॉर्पोरेट स्पाइनल एक्सटेंशन एंड स्कैपुलर रिट्रैक्शन एक्सरसाइज, जिस पोस्चर में है उसकी हमने अपोजिट मूवमेंट करवानी है। इनटू पोस्ट ऑपरेटिव प्रोग्राम, अगर प्रोटेक्शन है तो हमने क्या करवानी है, रिट्रैक्शन करवानी है। इमोबिलाइजेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव पोजीशनिंग क्या होगी, एट क्लोज ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर, जैसे हम सर्जिकल प्रोसीजर को जो है वो एंड करना है, ऑपरेटेड आर्म इज प्लेस्ड इन सम टाइप ऑफ इमोबिलाइजर यूजिंग ए स्लिंग और स्प्लिंट फॉर कंफर्ट एंड टू प्रोटेक्ट रीअटैच्ड एंड रिपेयर सॉफ्ट टिश्यूज। सॉफ्ट टिश्यूज़ के रिपेयरमेंट के लिए, कंफर्ट के लिए हमने क्या यूज़ करना है, इमोबिलाइजर यूज़ करना है। इमोबिलाइजर इज़ रिमूव्ड ओनली ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड बाथिंग। कोई एक्सरसाइज या बाथिंग में कोई हमने एक्टिविटी करनी है तो हमने इमोबिलाइजर को रिमूव कर देना ताकि इजीली जॉइंट मूव कर सके। पेशेंट हु नॉट रिक्वायर रिपेयर ऑफ रोटेटर कफ, जिनके रोटेटर कफ इंटैक्ट है, इज़ वीन फ्रॉम स्लिंग ड्यूरिंग द डे एज क्विकली एज पॉसिबल टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव स्टिफनेस, ताकि स्टिफनेस ना हो तो वो स्लिंग जो है वो ड्यूरिंग डे रिमूव कर देंगे। इफ़ ए पेशेंट हैज़ अंडरगोन ए कफ रिपेयर may need to wear the sling while in crowded area or during sleep, crowded area और sleep में अपने wear करना है for about 4 to 6 weeks to protect the repair tissues until sufficient healing occur, ताकि जो है soft tissues जो है वो क्या हो, repair होने का उनको time मिल जाए। A patient who has undergone reverse TSA wear a shoulder immobilizer continuously for 3 to 4 weeks फॉलोइंग सर्जरी, सर्जरी के बाद 3 to 4 वीक्स उसने जो है वो TSA के अंदर शोल्डर इमोबिलाइज़र यूज़ करना है
except for daily personal hygiene and periodic range of motion during the day. उस टाइम पे उसने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है. This is the important long lecture, and this is the half lecture that we delivered. Next we will discuss the exercise progression, and it is the end of my video. I definitely showed that you enjoy this video. Thank you.